Hello class. Now in the previous lecture we have gone through a numerical on auto cycle. Now in this lecture we will try to solve a sample numerical in the bigger cycle. So we have already done with the list of formula for diesel and auto cycle. And in the previous lecture I think we have solved also one numerical. So in this lecture we will see how diesel numerical may ask me example. So we will read the first problem statement to figure. Okay. So what is the problem statement mentioned? That is in an air standard diesel cycle. What they mention? In an air standard diesel cycle. Now here only you come to know which air standard cycle is there. Okay. यहाँ ही आपको पता चल गया कि ये एयर स्टैंडर्ड कौन सा है, डीजल है या पेट ऑटो है. सो हियर दिस इज द इनपुट in an air standard diesel cycle. So जैसे आपको पता चल गया ये air standard diesel cycle है, you can draw a PV diagram for it. Okay, we know the PV diagram for the diesel cycle. Okay, so it's better to draw PV diagram for all numerical because it is very easy to what we can say locate a state of cycle. Okay. So here we supposed to draw our PV diagram. Okay, name it 1, 2, 3, 4, and 5. So this is your dual cycle. Sorry, got it. This is a dual cycle. Namaste. Dual cycle. Constant pressure, traditional process. Okay. So this is the 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Pressure, volume. Okay, PV diagram. Okay. I will read the next line. The compression ratio is 16. Okay. Compression ratio कितना है हमारा? RC is 16. Next line. At the beginning of isentropic compression, the temperature is 15 degrees Celsius. At the beginning of isentropic compressions. Okay. At the beginning of isentropic compression कहाँ से start हो रहा है? यहाँ से start हो रहा है. Compression कहाँ end हो रहा है? At state 2 end हो रहा है. At state 1 compression start हो रहा है हमारा. And state 2 हमारा compression end हो रहा है. So 1 to 2 ही हमारा isentropic compression. और problem statement क्या बोलता है कि at the beginning of isentropic compression the temperature is 15 degrees Celsius. Okay. So ये temperature है T1 जो दिया है problem statement में, that is 15 degrees Celsius. उसको केल्विन में अभी ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस 270 ऐड करके. तो वो बन जाएगा हमारा T1 is 288 Kelvin. 288 Kelvin. 15 plus 273 become 288 Kelvin. Now we will read the next line. Okay. So what is the next line saying? And the pressure is 0.1 megapascal. At which location? At very beginning of the compression stroke. मतलब यहाँ point state 1 हमारा प्रेशर जो उन्होंने दिया है P1 it's 0.1 megapascal. अभी हम इसको ना पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ पास्कल दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. ओके. 0.1 इंटू 10⁶ 10⁶ क्या हो गया वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन वी विल रीड heat added. Pressure is 0.1 megapascal. Heat is added until the temperature at the end of constant pressure process. Heat is added until the temperature at the end of constant pressure process is 1480. मतलब ये हीट एडिशन प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस 2 to 3 ये जो है हमारा हीट एडिशन प्रोसेस है. और उन्होंने क्या बोला है कि हीट एडेड अंटिल a pressure at the end of heat addition process is reaches to 1480 डिग्री सेल्सियस. मतलब T3 जब तक 1480 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक हम हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर शुरू रखेंगे. सो ये अल्टीमेटली आपको
वैल्यू ऑफ T3 दिया है, T3 इज 1480 डिग्री सेल्सियस। हम उसको अभी ही कैलकुलेट करेंगे, 1480 प्लस 273 अगर हम कर रहे हैं तो हमें मिलता है T3 कुछ लगभग 1753 के। ओके, सो यह है हमारा T3। आफ्टर दैट what are the findings they supposed to ask? They want to calculate, or they asking for us find out the cutoff ratio. Okay, second thing, the inlet heat added kg of per cycle. We will go through this set for the findings. Okay, क्या क्या पूछा है उन्होंने? पहली चीज उन्होंने पूछी है that is cutoff ratio. कट ऑफ रेशियो। और क्या है कट ऑफ रेशियो? कट ऑफ रेशियो होता है V3 by V2। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है कट ऑफ रेशियो इज V3 by V2 एंड इट्स डिनोटेड बाय सिंबल रो। ओके, सो रो इज इक्वल टू V3 by V2, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट फाइंडिंग। सेकेंड फाइंडिंग पूछा उन्होंने हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर, हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर। अभी इससे ही पता चल जाता है कि मास ऑफ एयर इन द सिस्टम ए 1 kg है, क्योंकि फाइंडिंग में क्या पूछा है, द हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर। सो वन मोर गिवन हमको पता चल गया, मास इज 1 kg। ओके, फाइंडिंग से पता चला हमें। सो हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर, यह मास ऑफ एयर निकालने की जरूरत है, बिकॉज इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे मेंशन द हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर। सो पर केजी निकालना है, मतलब 1 kg है, यूनिट केजी मास सिस्टम में है, ये हमें पता चल जाएगा। पर केजी ऑफ हीट एडेड ड्यूरिंग द साइकिल। सो प्रोसेस हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, 2 to 3 प्रोसेस हमारा हीट एडिशन प्रोसेस, दिस इज अ डीजल साइकिल। ओके, सो हीट एडेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 to 3। सो उसको ऐसे लिख सकते हैं Q ऑफ 2 suffix 3 is equal to m multiplied by Cp। ओके, T3 minus T2 ये हमें निकालना है। ओके, इन दिस फॉर्मूला m पता है हमें, Cp ये तो कांस्टेंट होता है, वो हमें एजम करना पड़ता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया, बट इट इज कांस्टेंट। Cp और Cv ऑफ एयर हमको पता है, पता होना चाहिए। Cp है 1.004 एंड द Cv है 0.718। ओके, फॉर द एयर वो पता होना चाहिए हमें। m हमें 1 kg दिया हुआ है, Cp पता है। T3 हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही गिवन है, दैट इज T3। ओके, T3 इज 1753 केल्विन। और सिर्फ हमें पता नहीं है वो है T2, वो निकालना पड़ेगा, तो हमारा हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस 250 निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंडिंग क्या पूछा है उन्होंने हमें, लेट्स सी। द नेक्स्ट फाइंडिंग इज द साइकिल एफिशिएंसी। अभी द साइकिल एफिशिएंसी बोला है, अभी साइकिल एफिशिएंसी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी नहीं बोला है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होता तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, वो यूज करते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में। अभी साइकिल एफिशिएंसी बोला है, मतलब थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू W net divided by what, Q added, that is heat added। heat added is nothing but ये 2 to 3 प्रोसेस में जो भी हीट ऐड हमारा हुआ है, W net divided by प्रोसेस 2 to 3 जो भी है वो निकालना है। अभी W net क्या होता है हमारा, W net होता है हमारा हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। सो हीट रिजेक्टेड भी निकालना पड़ने वाला है हमें। ओके, सो अभी हीट रिजेक्ट W net देखते हैं, W net में क्या क्या होता है, QA। ओके, QA माइनस QR। ओके, अब लोग QA क्या है, MCP T3 माइनस T2 माइनस MCV। अब हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, यहाँ प्रोसेस 4 to 1, ये हमारा हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो हीट रिजेक्टेड होगा हमारा MCV T4 माइनस T1। ओके, अभी T4 माइनस T1 है, इसमें से हमको T4 नहीं पता, T1 पता है, इसमें से हमको T3 नहीं पता, T2 पता है। सो T3 T4 हमें निकालना है। सो तब जाके W नेट निकलेगा, नेट वर्क डन हमारा निकलेगा। वी कैन पुट दिस W नेट इन दिस thermal efficiency formula and we will able to calculate the thermal efficiency or cycle efficiency. Now next finding we supposed to calculate, that is mean effective pressure। okay, mean effective pressure। अभी mean effective pressure का formula simple है, W net divided by what, displacement of the piston, or we can say shaft volume, or we can say V1 minus V2। ओके, सो V1 माइनस V2, V1 पता होना चाहिए हमें, V2 पता होना चाहिए। W net के लिए ये सब
ये हमने निकाला है, इसमें से ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो ये हम निकालेंगे। नाउ ओवरऑल ये है आपके गिवंस, डीजल साइकिल पता चल गया, ये आपके गिवंस है और ये आपके फाइंडिंग्स है, और कुछ एजम्पशन है जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको आर का वैल्यू दिया था, आपको सीबी का वैल्यू दिया था, है ना, आपको गैमा का वैल्यू दिया था, बट इसमें दिया नहीं। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सीपी सीबी या आर का वैल्यू दिया नहीं, इट डजंट मीन दैट कि आपको कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकेंगे। यू शुड know what is the value that is characteristic gas constant of air. You should know what is the specific heat of air at a constant volume, what is the specific heat of air at constant pressure. ये सब आपको पता होनी चाहिए। okay, so it is you need to by heart it। okay, problem statement में दिया नहीं, assume suitable data लिखा होता है पेपर में। okay, so you have to assume it but correct data। suitable data means exact data you have to assume for the योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आर जो है वो होता है 287 ओके जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद होता है सी, वो होता है 0.718 ओके किलो जूल पर केजी केल्विन। सीपी होता है, ये सब जो निकाल रहा हूँ मैं कांस्टेंट, जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा मेजर ऑफ मेजोरिटी टाइम, बट कुछ टाइम दिया नहीं होता, तो यू हैव टू एज्यूम दिस वैल्यू ओनली। सीपी है आपका 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन ओके, एंड द गैमा आपको पता है 1.4 है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर व्हाटएवर द assumption we have to do. Now we start with the solution। ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड everything assumption, all the assumption we supposed to consider before starting the numerical। okay. I will start with the solution over here। okay, the first thing we have to do is to start with the state 1। okay, state 1 और 1 to 2 प्रोसेस बोल सकते हैं, फॉर द प्रोसेस 1 to 2 बोलो। चलो प्रोसेस 1 to 2 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रोसेस 1 to 2। अभी प्रोसेस 1 to 2 में आपको क्या क्या पता है? हमें पता है प्रोसेस 1 to 2 में मुझे टेम्परेचर पता है, मुझे प्रेशर पता है, ओके, T1 पता है, P1 पता है, मुझे मास भी पता है, बिकॉज 1 kg ऑफ यूनिट मास ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो फाइंडिंग है उसमें से हमें पता चलेगा। अभी हमको क्या नहीं पता एट स्टेट 1, हमें V1 नहीं पता। सो हमारा पहला फॉर्मूला है जो स्टेट इक्वेशन बोलते हैं हम इसको, P1 V1 इज इक्वल टू mR T1, है ना। सो कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? okay, yes, we can use it। so what is the value of P1? it is 0.1 multiplied by 10 raised to 6 V1। okay, m क्या है हमारा 1, so 1 multiplied by हमारा R क्या है 287, और हमारा टेम्परेचर एट 0.1 एट स्टेट 1 क्या है T1 है हमारा कुछ 288 के लिए। सो रीअरेंज करो ये इक्वेशन पूरा। ओके, 287 multiplied by 288 okay divided by 0.1 multiplied by 10 raised to 6। so ये कुछ इक्वेशन आएगा V1 के बारे में। okay, so after solving this thing you supposed to get the answer V1 is equal to something 0.827 meter cube, 0.827 meter cube। now you will ask me how meter cube, why not centimeter cube, why not liter? okay, so simple आंसर है उसका। जो भी ये प्रेशर है वो किस उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ कन्वर्ट किया ना उसको, किस में दिया था मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इट मींस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मेगा न्यूटन पर, सॉरी मेगा पास्कल मींस मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसको मल्टीप्लाई पर 10 raised to 6 किया, दैट इज हमने उसको पास्कल में कन्वर्ट किया, और पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये मीटर में है ना प्रेशर, अगर प्रेशर आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हो, ओके, इन दैट केस यू विल गेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, बट वॉल्यूम हमने प्रेशर किस में लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया। प्रेशर न्यूटन में है इसीलिए आर जो आर का वैल्यू भी है वो जूल में रहेगा। अगर प्रेशर किलो न्यूटन में है तो आर का वैल्यू किलो जूल में रहेगा, ये ध्यान रखो। यूनिट का यहाँ न्यूटन है तो यहाँ भी जूल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू रहेगा जूल पर केजी केल्विन। अगर प्रेशर किलो न्यूटन है तो आर का वैल्यू रहेगा किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल। ओके, ये ध्यान में रखो। सो
0.1 into 10 raised to 6 ये हमने लिया. So V1 after that solving this equation we are getting the volume at state 1 is 0.827 meter cube. Okay, so at this location, at this state, we come across three characteristic of state 1. Okay, what are those? हमें P1 पता है at state 1, that is 0.1 into 10 raised to 6 meter cube, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, हमें V1 पता है वो कुछ आया है 0.827. ओके, 827 मीटर क्यूब. ओके, एंड हमें T1 पता है वो है 288 kg. सो दोज आर द थिंग विच वी कम अक्रॉस एट स्टेट 1. आई विल सी व्हाट इज द what other thing we can calculate. Okay, हमें RC दिया है. व्हाट इज RC? ये हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो है. ओके, और कॉम्प्रेशन रेशियो क्या होता है? V1 by V2. अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखें, सो कॉम्प्रेशन रेशियो इज V1 by V2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RC इज 16. नाउ ड्यू टू दिस रिलेशन, ओके, अगर हमको V1 पता है, सो V2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 डिवाइड बाय V1 करना है. ओके, एंड द 16 डिवाइड बाय V1 हमारा क्या है? 0.827. सो 0.827 मीटर क्यूब अगर हम कर रहे हैं 16 डिवाइड, ओके, तो यू सपोज टू कम अक्रॉस V2 बिकम दैट इज 0.05166 मीटर क्यूब. ओके, सो V2 है हो गया हमारा 0.05166 मीटर क्यूब. ओके, ये हमारा V2 हो गया. ओके, नाउ अब V2 एक पॉइंट है हमारा. उस V2 पॉइंट पे हमें क्या पता है और क्या नहीं पता, वो अभी देखते हैं. V2 पॉइंट पे हमें टेम्परेचर T2 नहीं पता, हमें P2 नहीं पता. ओके, T2 भी नहीं पता और हमें P2 भी नहीं पता. ये T2 और P2 निकालना है हमें एट स्टेट 2. ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो अभी हमारा जो इक्वेशन है, रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है, ओके, ये वाला. ओके, इसमें हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है वो लेंगे हम पहले. ओके, सो फॉर्मूला हम इस तरह लिखेंगे. फॉर्मूला हम इस तरह लिखेंगे दैट T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इक्वेशन जो आपको रिलेशनशिप दिया है ना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में, वहाँ से हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकाला. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं. सो वी कम अक्रॉस दिस T1 मल्टीप्लाई बाय V1 by V2 raised to gamma minus 1. ओके, आफ्टर दैट अगर T2 है, T2 हमें निकालना है. T1 का वैल्यू हमें पता है दैट इज 288 केल्विन. अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 288 केल्विन. एंड V1 by V2 हमको डायरेक्टली पता है कि कॉम्प्रेशन रेशियो है. आप डायरेक्टली V1 by V2 16 लिखो, या V1 का इंडिविजुअल वैल्यू जो आया वो लिखो, डिवाइड बाय V2 का ये जो इंडिविजुअल वैल्यू वो लिखो. आपका रेशियो 16 ही आने वाला है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग अगेन दैट डिवीजन, डायरेक्टली पुट 16 ओवर हियर. ओके, और लिखो गामा माइनस 1 जो है दैट इज 1.4 माइनस 1 इज नथिंग बट द 0.4. हम डायरेक्टली इधर लिख लेते हैं. ओके, सो ये हो गया आपका T2 जो भी निकलेगा यहाँ, दैट विल बी T2 बिकम 873.05 केल्विन, 873.05 केल्विन. एंड T2 ये आपका आ गया 873.05 केल्विन. ओके, नाउ हमें निकालना है प्रेशर. अभी प्रेशर कैसे निकालें? वही जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप है उसी को यूज़ करके हम प्रेशर भी निकाल सकेंगे. सो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप लेते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन, जो भी मेरे प्रॉब्लम अपना जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है वहाँ से. सो क्या है? P2 by P1 डिवाइड बाय रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 by V2 रेस टू गामा माइनस 1. ये जो है हमारा रिलेशनशिप है प्रॉब्लम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में दिए हैं. सो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको. हमें क्या निकालना है? P2 निकालना है. सो यहाँ गामा माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं.
सॉरी gamma माइनस वन का रूट लेते हैं, सो इक्वेशन बिकम P2 by P1 रेस्ट टू gamma 1 अपॉन gamma इज इक्वल टू V1 by V2 बन जाएगा। ओके, नाउ ये जो है gamma का पावर लेते हैं, सो P2 by P1 रेस्ट टू V1 by V2, ये इस तरह बन जाएगा। अभी किसी को ये सिंप्लीफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा वे से भी कर सकते हैं। हमको पता है P2 V2 रेस टू gamma इज इक्वल टू P1 V1 रेस टू gamma। ओके, सो P2 by P1 इधर ले लिया और V1 by V2 रेस टू gamma, इस तरह भी कर सकते हैं कोई किसी को करना है तो। ओके, सो एट द एंड भी अगर हम वो लिस्ट ऑफ फार्मूला से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यही रिलेशनशिप मिल रहा है, दैट इज P2 by P1 is equal to V1 by V2 raised to gamma. That's it. Okay, so go through that list of formula only, simplify करना है पावर और रूट जो सिंप्लीफाई करना है P2 और वाला, और बहुत इजी है। एक बार समझ गया आपको तो एक बार प्रैक्टिस होगी तो बहुत इजी। ओके, इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, जब लिस्ट ऑफ फार्मूला से जाइए इज बेटर। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। सो P2 जो है वो इस साइड ही रहेगा, P1 इस जगह चला जाएगा, सो इट बिकम P2 इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय V1 बाय V2 रेस टू gamma। सो P1 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, P1 का वैल्यू गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड नहीं किया हमने, वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड V1 बाय V2 ये हमारा कॉम्प्रेशन रेशियो वो गिवन है, दैट इज 60 रेस टू 1.4। ओके, सो ये रहा आपका जो इक्वेशन है। ओके, इसको हम कैलकुलेट करते हैं या सिंपली, अभी ये जो आंसर आने वाला है आपका P2 का वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ओके, अगर इसको बार में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज सॉरी 48.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको बार में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 48.5 ओके मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इंटू 10⁻⁵ बार करना पड़ेगा। सो ये आपका जो आंसर आएगा 48.5 बार रहेगा P2। ओके, जरूरत नहीं है बार में कन्वर्ट करने की, यू कैन राइट इट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो, बट जस्ट यू मस्ट नो कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है प्रेशर का। ओके, पास्कल का बार में कन्वर्ट करना है, मेगा पास्कल का पास्कल में कन्वर्ट करना है, सो हाउ कन्वर्जन आर टेक प्लेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव पुट इन फ्रंट ऑफ यू हाउ वी कन्वर्ट यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू बार। ओके, सो 48.5 जो भी आया था इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था हमारा आंसर। इसको सिर्फ इसको सिर्फ बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, -5 प्लस 5 चला गया, सो इधर हो गया 48.5 बार। दिस विल बी न्यू यूनिट फॉर द P2। नाउ हमें क्या क्या पता है एट पॉइंट 2, हमें T2 पता है, व्हाट इज T2, इट्स 873.05, हमें P2 पता है 48.5 बार, हमें V2 पता है, क्या है हमारा V2, 0.05166। ओके, सो ये हमें एट स्टेट 1 T2 सॉरी एट स्टेट 1 T1 P1 एंड V1 पता है, एट स्टेट 2 T2 P2 और V2 पता है। ओके, नाउ उन्होंने पूछा क्या है, बिकॉज दिस थिंग इज आई थिंक दिस द थिंग इज सफिशिएंट फॉर टू कैलकुलेट फर्स्ट 2-3 फाइंडिंग्स। ओके, अभी उन्होंने पूछा क्या, फर्स्ट फाइंडिंग हमें पूछा उन्होंने कट ऑफ रेशियो। ओके, कट ऑफ रेशियो पूछा है, दिस इज द फर्स्ट फाइंडिंग। कट ऑफ रेशियो क्या होता है हमारा, V3 by V2। ओके, अगर कट ऑफ रेशियो V3 by V2 है, हमने V3 निकाला है या नहीं, V3 देखते हैं हम, V3 का क्या ये है। ओके, तो ये है हमारा V3, हमें V3 भी निकालना है। ओके, कट ऑफ रेशियो निकालना है हमें V3 भी निकालना पड़ेगा। ओके, बट थोड़ा सा प्रॉपरली अगर हम देखते हैं एट स्टेट 2 to 3, एट स्टेट और ड्यूरिंग प्रोसेस, नॉट स्टेट, ड्यूरिंग प्रोसेस
2 to 3 अगर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ फार्मूला और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो देखिए ऐसा कुछ आएगा P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू P3 डिवाइड बाई T3। अभी वो कौन सा प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, तो प्रेशर कांस्टेंट है P2 एंड P2 P3 कट। सो ये इक्वेशन जो है प्रोसेस फॉर द प्रोसेस 2 to 3 बिकम लाइक दिस। Okay, so now V2 by V3 is equal to what? V2 by V3 is equal to now T2 by T3. Okay, is it? और हमारा कट ऑफ रेशियो क्या है? Is it like V3 by V2 is equal to T3 by T2? So V3 by V2 हमारा कट ऑफ रेशियो है। So हम डायरेक्टली V3 by V2 is equal to T3 by T2 is equal to डायरेक्टली T3 पता है हमें, T3 पता है या नहीं पता? T3 आई थिंक गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही गिवन है T3, देख लेते हैं। हाँ, T3 गिवन है हमें 1753। ओके, सो डायरेक्टली हम T3 का वैल्यू डाल सकते हैं। T3 1753 और T2 जो है हमने अभी निकाला है ऊपर, दैट इज 1873.05। ओके, सो बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके, अभी क्या है कि आप दूसरे वे से भी कर सकते थे। अभी ये जो हमारा इक्वेशन है कट ऑफ रेशियो V3 by V2, ओके, ये हमें पता है कट ऑफ रेशियो इज V3 by V2, इसमें हमको V2 पता है बट V3 नहीं पता, तो पहले हम V3 निकाल सकते हैं। तो V3 निकालने के लिए हमको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता था, V2 by T2 इज इक्वल टू V3 by T3। ओके, अब इस इक्वेशन में हमको क्या क्या पता है, T2 पता है हमें, V2 पता है हमें, T3 ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है। सो V3 मिल जाता है, V3 मिलने के बाद हम इसमें डालते हैं। ओके, सो उससे अच्छा V3 निकालने से अच्छा अगर हम डायरेक्टली, हमको पता है कि V3 by V2 इज इक्वल टू T3 by T2। ओके, और हमें क्या निकालना है, V3 by V2 ही निकालना है ना, कट ऑफ रेशियो। सो V3 इंडिविजुअली ना कैलकुलेट करते हुए डायरेक्टली V3 by V2 इज इक्वल टू T3 by T2 निकल गया है इस रिलेशनशिप से। सो T3 पता है, T3 पता मतलब गिवन है, और T2 हमने निकाला है। सो डायरेक्टली पुट करके V3 by V2 ही आने वाला है। ओके, सो नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर V3, सो दैट्स वाई हमने ये मेथड यूज किया। अदरवाइज समझो T3 नहीं दिया होता तो पहले आपको T3 निकालना पड़ता, फिर T3 इस वैल्यू में डालना पड़ता, फिर V3 निकालना पड़ता या दूसरे वे से निकालना पड़ता। बट अगर आपको V3 by V2 डायरेक्टली T3 by T2 इक्वेट है और है वो तो, और T3 पता है आपको और T2 भी पता है, सो नो नीड टू कैलकुलेट V3 टू कैलकुलेट कट ऑफ रेशियो। ओके, सो हम डायरेक्टली जाएंगे T3 by T2 इज इक्वल टू V3 by V2, दैट इज कट ऑफ रेशियो, और वो 1753 by 873.05 इतना है। सो कितना आता है हमारा कट ऑफ रेशियो, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कट ऑफ रेशियो आता है 2.008। सो इट इज अ नंबर, इट्स डोंट हैव एनी यूनिट बिकॉज वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम हो रहा है, टेम्परेचर डिवाइड बाय टेम्परेचर। सो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है कट ऑफ रेशियो, उसको यूनिट नहीं रहेगा, वो है 2.008। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट फाइंडिंग। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट अदर प्रेशर्स एंड टेम्परेचर जो कि हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए लगने वाली है। अब प्रोसेस हम देखेंगे 3 to 4 प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस 3 to 4 देखेंगे। अभी प्रोसेस 3 to 4 क्या है हमारा, देखिए प्रोसेस 3 to 4 हमारा है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। ओके, सो प्रोसेस 3 to 4 देखेंगे। अभी 3 to 4 क्यों लग रहा है हमें टेम्परेचर एट पॉइंट 4 निकालना है, बिकॉज हीट रिजेक्शन निकालना है ना हमें, क्योंकि डब्ल्यू नेट के लिए हमें हीट रिजेक्शन पता होना चाहिए। सो उसके के लिए हमें प्रोसेस 3 to 4 लेना होगा। सो ये प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, उसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन अगर हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूला से देखेंगे तो हमको इस तरह का एक इक्वेशन मिलता है, T4 by T3 is equal to V3 by V4 raised to gamma minus 1। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन मिलेगा हमें। इस यहाँ हमें क्या क्या पता है, हमें T4 पता है, यहाँ हमें V3 by V4, ये क्या है हमारा V3 by V4।
V3 by V4. So V4 हमें नहीं पता फिलहाल, ओके, बट V4 इज इक्वल टू V1 है बेसिकली। अगर हमें डीजल साइकिल निकालते हैं, इसी पेज पे हम निकालते फॉर रेफरेंस के लिए। सो फॉर रेफरेंस हमने पीवी डायग्राम निकाला, ओके। सो हियर हमें T4 जो है वो प्रॉब्लम सेट नंबर G1 है, T3 जो है वो निकालना है बेसिकली, ओके। सॉरी, T3 पता है, T4 बेसिकली निकालना है हमें, V3 नहीं पता। V4 जो है अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे पीवी डायग्राम पे, तो V4 एंड V1 एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। सो जितना V1 है उतना ही V4 रहेगा। सो ये जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, T4 बाय T3 इज इक्वल टू, है ना, V3 बाय V1, इज इट। सो दूसरी बात, यह निकालना है हमें T4। सो T4 इज इक्वल टू T3 मल्टीप्लाई बाय V3 बाय V1 रेज़ टू गामा माइनस 1। अब इस इक्वेशन में हमें V3 नहीं पता। सो जो प्रीवियस स्टेप में हम V3 निकाला नहीं हमने, उसी स्टेप से हम इक्वेशन लेंगे फॉर द प्रोसेस 2 to 3। ये जो हमें रिलेशनशिप मिला था वही रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे, ओके, टू फाइंड आउट द V3, बिकॉज इस इक्वेशन में दो अननोन है, T4 भी नहीं पता और V3 भी नहीं पता, ओके। इसमें से एक अननोन जाएगा तब जाके दूसरा अननोन पता होगा, ओके। सो वी विल think for this thing, we will have to calculate first this thing, okay, and that is V3, just a minute, okay। so the equation of V3 is equal to V3 by V2, okay, is equal to T3 by T2, okay। so V3 is equal to V2 multiplied by T3 by T2। सो V3 निकल जाएगा हमारा, V3 निकल जाएगा हमारा। V2 क्या है, V2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें निकाला है V2। द वैल्यू ऑफ V2 इज 0.05166 मीटर क्यूब, ओके, मल्टीप्लाई बाय T3 बाय T2, ओके। T3 बाय T2 ये जो है, T3 बाय T2 ये क्या है हमारा, कट ऑफ रेशियो ही है, या सेपरेटेड T3 बाय T2 कर किया आपने तो आपको वही आने वाला है, ओके। सो कर लेते हैं T3 बाय T2 सेपरेटली। सो T3 हमारा कुछ है 1753 और T2 है हमारा 873.05, ओके। सो V3 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है कुछ 0.1037 मीटर। ये आ गया हमारा V3। अभी ये जो V3 है अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ओके, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो T4 इज इक्वल टू T3 है कुछ 1753 मल्टीप्लाई बाय V3 है कुछ 0.1037, ओके, जो निकाला अभी हमने यहाँ, और V1 है हमारा 0.1, ओके। सो V3 बाई V1 कुछ V1 कितना दिया है चेक करते हैं। V1 है 0.827, सॉरी इट्स नॉट V1, इट्स 0.827, ओके।
सो 0.27 कितना आएगा तो हमारा T4 आता है 764 kg। ओके, T4 आता है हमारा 764 kg। ठीक है, ना हम निकालते हैं हीट एडेड पर केजी ऑफ एयर, अनदर फाइंडिंग। अभी ऑलमोस्ट सब जो भी है फाइंडिंग हमें मिल चुका है। सो सेकेंड फाइंडिंग हम निकालते हैं हीट एडेड। हीट एडेड निकालते हैं। हीट एडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फॉर्मूला है हीट 223 इज इक्वल टू mCv। ओके, सॉरी mCp रहेगा, है कांस्टेंट प्रेशर है T3 माइनस T2। सो मास है 1, Cp है हमारा 1.005। ओके, T3 है हमारा, T3 क्या है दिया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, दैट इज 1753 माइनस T2 क्या है हमारा, T2 हमने निकाला है कुछ 873.05। ओके, सो हमारा Q2 आता है, हीट एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 आता है हमारा 884.35 किलो जूल पर केजी। पर केजी मीन्स पर यूनिट मास, ये हमारा हीट एडेड आता है। ओके, ना हमें दूसरा फाइंडिंग निकालना है साइकिल एफिशिएंसी। अभी साइकिल एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं, ओके, साइकिल एफिशिएंसी अगर हम निकाल रहे हैं, ओके, थर्ड फाइंडिंग साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी मतलब ही थर्मल एफिशिएंसी, वो क्या आता है हमारा डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट एडेड। ओके, सो डब्ल्यू नेट क्या है हमारा, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट एडेड तो हमने निकाल चुके हैं, वो है हमारा प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 जो भी है 884। ओके, सो दिस इज 884.35 माइनस हीट रिजेक्टेड mCv। ओके, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1 हो रहा है ना, सो T4 माइनस T1। सो 884.35 माइनस m मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय Cv इज 0.718। T4 है जो हमारा निकाला है हमने 764। ओके, 764 जो यहाँ हम पुट करेंगे 764 माइनस T1 था हमारा कुछ 288 केल्विन। सो ये हमारा W 542 हमारा W आ रहा है 542.58 किलो जूल पर केजी। ओके, सो ये हो गया डब्ल्यू नेट। नाउ साइकिल एफिशिएंसी, ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। ओके, सो 542.58 डिवाइड बाय हीट एडेड। हीट एडेड कितना है हमारा 884.35। ओके, इसका वैल्यू दैट इज 884.35। सो थर्मल एफिशिएंसी कितना आ रहा है हमारा, इतना हीट सप्लाइड किया और उसमें से इतना ही वर्क डन हुआ, सो वो आ रहा है हमारा 0.6135। ओके, अगर परसेंटेज में लेते हैं तो 61.35% एफिशिएंसी है हमारा। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ फाइंडिंग है हमारा व्हाट इज अ मीन इंडिकेट इफेक्टिव प्रेशर। उसका फॉर्मूला डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय V1 माइनस V2। अभी डब्ल्यू नेट हमें पता है क्या है, हमारा डब्ल्यू नेट आया है 542.58। ओके, डिवाइड बाय V1 माइनस V2। अभी V1 कितना है हमारा, V1 हमने कैलकुलेट किया था, सो V1 कुछ था हमारा 0.827 मीटर क्यूब माइनस V2 था हमारा कुछ 0.05166 मीटर क्यूब। ओके,
है, हमने कैलकुलेट किया है ये दोनों चीज़ें। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग वी कम अक्रॉस जो भी हमारा प्रेशर है दैट विल बी ये हमारा 542 किलो जूल में है ना, किलो जूल पर केजी। ओके, सो जो आने वाला आंसर भी है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा 699.79 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो यह है हमारा मेन इंटीग्रेट इफेक्टिव प्रेशर। अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, सो सिंपल है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला अब हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RC रेस टू gamma minus 1 multiply by rho raised to gamma minus 1 gamma raised to rho minus 1 gamma multiply rho minus 1. So this RC is 16. okay, compression ratio है ये। okay, उधर डाल दो, gamma 1.4 होता है -1, या कट ऑफ रेशियो हमने कैलकुलेट किया है वो कट ऑफ रेशियो वहाँ डाल दो। ओके, ये कट ऑफ रेशियो यहाँ डाल दो और gamma ये वैल्यू सब डाल दो, इसको सॉल्व करो तो आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा नहीं, सो ये एक थिंग बचा था। और इंक्लूडिंग दैट जैसे हम ऑटो साइकिल की न्यूमेरिकल देखे उसमें उन्होंने पूछा था कि temperature, pressure, volume at all key points, so that will be also another finding they may ask. okay, so that same way जैसे हमने pressure, volume, temperature का state to state relationship लिया, in that way you can calculate the remaining temperature, pressure and volume, and almost all the temperature, volume, pressure is calculated. okay, so now you can have this thing, you can solve the numerical on diesel also. So other than this, no any difficulty level may ask in the exam. okay, यही है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पैरामीटर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, यही पैरामीटर पूछे जाते हैं। जैसे आज ऑटो के लिए ऑटो न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल दे, उसी तरह हम इसके लिए भी देंगे। ओके, डीजल के लिए। सो आप सॉल्व कीजिए और असाइनमेंट और मुझे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। अगर कुछ डिफिकल्टी रहा तो पूछिए।